દેશમાં લોકસભા ચૂંટણીનો પ્રચાર પ્રસાર ચાલી રહ્યો છે ત્યારે સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીમાંથી સમાચાર સામે આવે છે કે કોંગ્રેસ અને આદિવાસી નેતા પ્રભુ ટોકિયા લોકસભા ચૂંટણી નહીં લડે। પ્રદેશના ખરાબ રાજનૈતિક અને સામાજિક સ્તરને લઈને લીધો છે આ નિર્ણય। કોંગ્રેસ અને આદિવાસી નેતા પ્રભુ ટોકિયા આગામી લોકસભા ચૂંટણી નહીં લડે એની જાણકારી પ્રેસ નોટના માધ્યમથી તેમણે આપી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે દાદરા નગર હવેલી ખૂબ જ નાજુક પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે। રાજકીય અને સામાજિક સ્તરેથી દરેકને એક મંચ પર લાવવાના અનેક પ્રયાસો થયા છે, પરંતુ નેતાઓ પોતાના અંગત સ્વાર્થ અને નેતા બનવાની મહત્વાકાંક્ષા છોડવા માંગતા નથી। આવા વાતાવરણમાં ચૂંટણી લડવાનો કોઈ અર્થ નથી। એટલા માટે તેમણે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી નહીં લડવાનો નિર્ણય કર્યો। વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું કે આવનારા સમયમાં મારે દાદરા નગર હવેલીની છેલ્લી હરોળમાં બેઠેલા લોકો સુધી પહોંચવું છે અને તેમને તેમના હક માટે રસ્તા પર ઉતારવા માટે તૈયાર કરવાના છે અને આ માટે મારે થોડો સમય જોઈએ છે। ચૂંટણી લડ્યા વિના પણ હું હંમેશા રાજ્યની જનતાની સેવા અને હક માટે લડતો રહીશ। પ્રભુ ટોકિયાએ જણાવ્યું હતું કે દાદરા નગર હવેલીમાં રાજનીતિનું સ્તર દિવસે ને દિવસે નીચે જઈ રહ્યું છે, તેનું મને અંગત રીતે ખૂબ દુઃખ છે। રાજ્યનું અસ્તિત્વ ખતમ થઈ રહ્યું છે। ચૂંટાયેલા તમામ જનપ્રતિનિધિઓને માત્ર બેસવા માટે ઓફિસો અને ખુરશીઓ આપવામાં આવી છે, પરંતુ સત્તા નથી અને જનપ્રતિનિધિઓનું અસ્તિત્વ જ ખતમ થઈ ગયું છે। આવા વાતાવરણમાં માત્ર નામ ખાતર ચૂંટણી લડવાનો કોઈ અર્થ નથી। જનપ્રતિનિધિઓ અને જનતા વચ્ચે કોઈ સાંભળતું નથી। વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, વિવિધ સરકારી વિભાગોના સી એન્ડ ડી કેટેગરીના કર્મચારીઓ, ખાણ સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓ, શાકભાજી વેચતા નાના દુકાનદારો, બજારના વેપારીઓ, મજૂરો અને સામાન્ય જનતા ખૂબ જ દુઃખી છે। દિવસે ને દિવસે વહીવટીતંત્રમાં બેઠેલા અધિકારીઓની મનમાની, તાનાશાહી અને ભ્રષ્ટાચાર વધી રહ્યો છે। આવનારા સમયમાં પણ આપણે દાદરા નગર હવેલીના દરેક ગામ અને દરેક ગામડાઓમાં જઈને સમાજની છેલ્લી હરોળમાં બેઠેલા લોકો સુધી પહોંચીને જનજાગૃતિ અભિયાન ચલાવીને લોકોને તેમના હક માટે રસ્તા પર ઉતરવા તૈયાર કરવાના છે। તે માટે મારે થોડો સમય જોઈએ છે। એટલા માટે હું 2024ની લોકસભા ચૂંટણી લડીશ નહીં અને ચૂંટણી લડ્યા વિના પણ રાજ્યની જનતાની સેવા કરી શકાય અને હું લોકોનો હક માટે લડતો રહીશ। सबसे पहले तो बहुत ही कम समय में आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी गई और आप सभी आए यहाँ पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता तक संदेश देना चाहता हूँ। इस बात को लेकर कई लोग सोचने के लिए मजबूर भी होंगे कि प्रभु टोकिया ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्या वजह है। बहुत सारे उसके वजह पहलू है। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में इस चुनाव से मैं बाहर हूँ, चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ। दादरा नगर हवेली से लोकसभा चुनाव, जैसे कि आप सबको पता है कि 2019 में मैं कांग्रेस का प्रत्याशी रहा। उसके बाद सतत कांग्रेस पार्टी में प्रदेश स्तर से लेकर जहाँ जहाँ आलाकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी। लास्ट में जैसे आप सबको पता है कि राजस्थान चुनाव में भी मैं एज अ ऑब्जर्वर करीब 8 सीटों की विधानसभा ऊपर मैं प्रैक्टिकली फील्ड वर्क के साथ में काम भी किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। साथ ही मैं यहाँ पर दादरा नगर हवेली में एज अ कांग्रेस कमेटी में एज अ कन्वीनर कैंपेनिंग कमेटी में मैं खुद हूँ। और यहाँ पर आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी में मीडिया बोलो या जमीन स्तर पर काम करने हर चीज़ों को लेकर जहाँ कहीं भी प्रदेश के हित की बात आई, जनता के हक अधिकार की बात आई, जहाँ कहीं भी एज अ कांग्रेस लीडर, एज अ प्रदेश के एक जागरूक लीडर के तौर पर मैंने आवाज़ उठाने का काम किया है। और साथ ही मैं ये भी आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो आने वाले समय में 2024 चुनाव के बाद जो प्रदेश में जो जितनी भी जो समस्या है, जो हक अधिकार की जो लड़ाई है, वो तमाम लड़ाई में अविरत वो मेरी लड़ाई चालू रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो चुनाव है इस समय मैंने, जैसे आप सबको पता है, मैंने 2019 से ही लगातार प्रदेश में जितनी भी जो समस्या को लेकर और प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के जो अस्तित्व को लेकर, दादरा नगर हवेली के अस्तित्व की बात को लेकर, यहाँ के हक अधिकार को जो भी मुद्दे हैं वो तमाम चीज़ों को लेकर मैंने हर प्रकार से कोशिश की
कि सबसे पहले कि दादरा नगर हवेली में जैसे कि स्वर्गीय मोहन डेलकर जी का निधन होने के बाद जो प्रदेश में जो परिस्थितियां खड़ी हुई और दिन ब दिन जो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के जो एक बिल्कुल उनको ऑफिस दी गई है, उनको चेयर दी गई है, लेकिन उनको पावर नहीं है। जैसे कि पूर्व में कलेक्टर यहाँ हमारे कंदन जी भी रहकर गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि दादरा नगर हवेली में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ एक केयर टेकर की भूमिका में है। ये सारी चीज़ों को लेकर हमने मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रदेश के हित के लिए तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि, पार्टी पक्ष के जो नेता हो या सामाजिक न्याय के मंच के नेता हो, सबको साथ में जाकर चर्चाएं की कि दादरा नगर हवेली में ये जो बहुत ही नाजुक परिस्थिति गुजर रहा है और ऐसे समय में हम सबको एक मंच पर आकर जो वर्तमान में शासन या प्रशासन की जो तानाशाही, प्रशासन की जो मनमानी है, लोकशाही को बिल्कुल यहाँ पर एक हाशिए में दखल दिया गया है। इन सारी चीज़ों को लेकर एक मंच पर आकर लड़ने की बात हमने कही, लेकिन सभी नेता अपने अपने निजी स्वार्थ और अपनी अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़ना नहीं चाहते और उससे मैं बहुत दुखी भी हूँ और आहत भी हूँ कि प्रदेश का अस्तित्व खत्म हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। बावजूद हमारे जो एक जागरूक और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि लोक हित की बात नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रदेश के हित के लिए, हक अधिकार के लिए कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता है और सत्ता के नशे में जहां सत्ता चल रही है, जहां हवा चल रही है, वहां पर पूरे जो जनप्रतिनिधि है वो एक दिशा में दौड़ रहे हैं। मुझे ये भी लगा कि जो आने वाले समय में 2024 चुनाव के बाद कौन एमपी बने नहीं बने ये तो वक्त तय करेगा, परंतु 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो भी सांसद बनेगा उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो मैंने इस समय मैंने ये देखा कि मैं यहाँ पर एज ए कांग्रेस पार्टी के तौर पर मैंने हमारी जो कांग्रेस पार्टी की तमाम जो स्थितियां हैं, जो परिस्थिति है, संगठन से लेकर जो यहाँ के जो चल रहा है, यहाँ पर संगठन में क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को लेकर हमने यहाँ के जो हमारे जो कांग्रेस के हमारे जो एआईसीसी प्रभारी इंचार्ज मानिकराव ठाकरे जी और एआईसीसी के बहुत सारे साथी यहाँ पर आके गए, तमाम चीज़ें हमने उनके सामने रखी। इसके अलावा हमने तमाम चीज़ें एआईसीसी के समक्ष भी ये सारी बातें रखी और कहीं न कहीं संगठन में जो हिसाब से संगठन को काम करना चाहिए वो दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं, उससे मैं भी थोड़ी मेरी नाराज़गी मैंने व्यक्त की थी और वहाँ से भी सही से कोई फीडबैक नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से मैंने ये निर्णय लिया है और ये लोकसभा चुनाव से मैं बाहर हूँ। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का एज ए लीडर के तौर पर आला कमान द्वारा, एआईसीसी द्वारा जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी मुझे कार्य दिया जाएगा, वो काम मैं पार्टी के लिए करूँगा। कि जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की जो हालत है वर्तमान में ऐसी है कि ठीक है, पार्टी संगठन की बात है, वो तो एक बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो उसका सॉल्यूशन है, वो तो हो जाता है। लेकिन यहाँ वर्तमान में ऐसी परिस्थिति है कि जो हर कोई व्यक्ति ऐसे दादरा नगर में जो एक बहुत नाजुक समय चल रहा है और बहुत गंभीर स्थिति में नगर हवेली आ चुकी है, ऐसे परिस्थितियों में जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कोई वजूद ही नहीं है, जब लोकसभा का कोई मतलब ही नहीं है, तो चुनाव लड़कर मैं करूँगा क्या, ये मेरे सामने चीज़ आई है। दूसरी बात यह है कि अभी भी 20 पंचायत और एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नगर दादरा नगर और नगर पालिका और जिला पंचायत और ग्रुप ग्राम पंचायत सभी चुने हुए लोग हैं। आज वर्तमान में इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का क्या अस्तित्व है, उनका क्या है? अगर सिर्फ चुनकर सिर्फ कुर्सी और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ही चुनाव लड़कर एमपी बन जाना है या सरपंच बन जाना है या जिला प्रमुख या नगर पालिका प्रमुख बन जाना है, तो ऐसे चुनाव की प्रक्रिया में मुझे आने का कोई मतलब नहीं है। तो चुनौतियों से लड़ना आपकी फितरत रही है, तो आप